compliment that you Justice Sushant live performance and this ये film तेरी पहली film नहीं लगती है, doesn't look like your first film, and it's too real, too close to the reality. I think all this so many compliment I got from almost so many filmmakers and actors and producers and so many friends of mine have called me, and I can see the love from people. They're writing the same thing. My favorite, there are so many of my favorite things. The best one, which I think, when he is lying down on his nani's lap and there's no dialogue. When he comes back from Paris, and if you remember that scene, there's no dialogue. मैंने के मम्मी पापा भी आते हैं, just music, and he just when he got to know कि मैं my cancer is back. That is my favorite scene, because I remember shooting for that scene. I was too emotional. We were all very emotional when we were watching him performing like that. There was no dialogue, and I think he was the master of silence. How he handled that scene so well. I was just seeing that scene today only. In the morning also I was watching that scene again. दिल्ली से आते हो, theatre background से आते हो, तो you know, to and also you have to work 24/7. To I think I work morning to रात तक काम करना, तो you have to and then कभी आपको कम time मिलता है to spend time with your family, your mom, dad, because in the process of जिसको लोग struggle बोलते हैं, process बोलते हैं, in the process you are so involved with your own self in this city that you forget your own people, because you don't get time कि उनके साथ time spend करना मौका मिलता है. तो वो मेरे को लगता है कि सबसे एक, लेकिन जब चीजें समझ में आती है, चीजें बेटर होती है, जब कंट्रोल में आती है, then you again understand the value of relationship with your own mother. तो you only running in this city, तो वो बहुत न्यू चेंज होता है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है that journey, that from दिल्ली से आके यहाँ पर आना और just make your mark. I feel lucky. I think जो काम करते रहना चाहिए. Feel more responsible to maintain and sustain that or keep working. It's too soon for me to jump into another script, because I'm too involved with this in Bechara and with Sushant. It'll take me some more time, maybe, I don't know, a month or 2 months, or maybe how many months, I don't know. But out of this my system, I might think about my second film. Right now I'm not thinking about anything. I think दोनों बराबर चलेंगे. I can't ignore casting, because whatever I am today all because of casting. So casting and direction, वो सब parallel चलेगी. Of course I can't leave casting. I'm already casting on so many films. I've just started from yesterday only. I've started. So I think ये दोनों साथ साथ चलेंगी. I can't, because ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये भी मुझे बहुत पसंद है. मैं दोनों के साथ कोशिश करूँगा बैलेंस करने की. हाँ, लेकिन जब फिल्म बनाऊंगा तो obviously you have to take a break from casting. Like for Dil Bechara also taken a break from casting for like more than a year and a half. So now again when I make my next film again I'll take a break, but I will never leave casting. In care for casting लेकर I have more plans. अभी मैं और सारे offices खोलने वाला हूँ to get more talent. अभी तो मैं और इसको extend करने वाला हूँ, because I just got back to casting. So I'm going to see very differently. वो आज अब फिल्म याद होगी तो घर पे सब लोग टीवी देख रहे हैं, उसमें हंसी वाला सीन है, वो तो बात कर रहे हैं मजे, क्योंकि मैंने वो सीन इसलिए शुरुआत किया था कि एक सीन के अंदर सब फैमिली मिल जाएगी. स्वातिका, शाश्वता, सुशांत, संजना, सब एक सीन में तो आइस ब्रेक हो जाता है. और यू शुड ऑलवेज स्टार्ट अ फिल्म विद अ हैप्पी नोट, because you can't start a film with a sad note. So मैंने वो तो पहला सीन रखा था जिसमें खुशी से सब टीवी देख रहे हैं. एक फिर वो सीन था, उसके बाद वो जब कि अब घर का फैमिली मैटर रहते हैं, सिटिंग डिस्कसिंग, तो उससे स्टार्ट किया था. स्टिल रिमेंबर पहला वाइट शॉट था, चारों बैठे थे फिल्म के अंदर. उसके बाद हम लोग क्लोज पे गए थे. आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. ऐसा उसकी फिल्म उसके साथ जस्टिस किया. पीपल आर लाइक उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जा रही है. मतलब पीपल विल रिमेंबर उसके हर फिल्म के अंदर उसकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल है. एंड इसमें उसकी अलग साइड लोगों को देखने को मिली. उसका जो डायरेक्ट है वो थोड़ी सी अच्छा लगा, क्योंकि पहले बहुत डर था, रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा था कि हाउ पीपल गोइंग टू रिसीव दिस फिल्म. वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो कंट्री आफ्टर ट्रेलर सब लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. अगर फिल्म के अंदर अगर उसका मैं एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पाता तो शायद मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि मेरे अंदर वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती थी, बट डर रहता था. पहले सवाल का जवाब, आई थिंक दिस इज द टोटली स्टूडियो कॉल. आई थिंक आई ऑल्सो वांट कि कोई स्पेशल शोज मैं उनके फैन के लिए रखूँ या करूँ, लेकिन आई थिंक द स्टूडियो जब हम थिएटर खोलेंगे, ये सवाल का जवाब क्लोज टू द थिएटर व्हेन थिंग्स आर बेटर
आई थिंक ऑलरेडी इन डिस्कशन विद देम कि ऐसा हमको कुछ करना चाहिए. आई थिंक ऑन द स्टूडियो फॉक्स स्टार एंड डिज्नी they take the final call. So I think in my, of course they're thinking, of course I'm also thinking that direction. सेकंड सवाल कि फिल्म की लेंथ जानबूझ के छोटी रखी थी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब भी आप किसी ऐसी फिल्म पे काम करते हो बहुत इमोशनली बहुत हैवी होती है, तो आप एक चाहते हो कि वो फिल्म जो है वो बिना रुके खत्म हो जाए. बिकॉज क्या है कि जब आप लेंथ को ऐसे मेंटेन करके रखते हो तो आपको मालूम नहीं चलता कि फिल्म कब खत्म हो जाए. तो वो बहुत डेलिब्रेट डिसीजन था कि फिल्म को छोटा रखने का, बिकॉज जैसे ही आप किसी इमोशनल फिल्म को बड़ा करते हो तो आपको बहुत लेंथी लगने लगती है. तो ये डिसीजन बहुत क्लियर था. फिल्म दिखते हो ये है कि जब आप when you I knew him so well as a person, तो जब हम लिख भी रहे थे तो मुझे पता ही था कि तुषार कर रहा है, तो उसकी जो खुद की रियल क्वालिटीज है, चाहे वो जो वन लाइन्स है, तो वो ऑफ कोर्स आप एक एक्टर को दिमाग में रखते लिखते हो कि जब चाहे वो जोक है कि मुझे आंटी नासा जाना है, तो आई थिंक वो जब आपको पता है कि एक्टर परफॉर्म करने वाला है, और ऑल्सो जब ही परफॉर्म ही वाज सो रियल कि वो अगर वो अभी वो अनफॉर्चुनेट ऐसा लाइफ में हुआ है तो लोग उसको जोड़ना शुरू कर दे रहे हैं. राइटर जब आप फिल्म को लिखते हो, शशांक जब लिख रहे थे, हम जब डिस्कशन करते थे, तो आप ये सोच के कभी नहीं लिखते हो कि ये लाइफ में होने वाला है. पर यह है कि वो उस कहानी भी थोड़ी, जिस तरह की कहानी है वो भी थोड़ी एंडिंग बहुत ही सैड है, तो वो एंड से शायद लोग उसको ज्यादा रिलेट करते हैं. आई थिंक ये फिल्म तो मेरी जिंदगी के साथ अब जुड़ गई है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी. फिल्म को तो अभी अलग करना मेरे से बड़ा मुश्किल है. एक तो पहली पिक्चर, ऊपर से सुशांत की आखिरी पिक्चर, ऊपर से ट्रेजेडी, ये तो जिंदगी भर कोई जाने वाला है. अच्छी चीजें जो है उसके अंदर जितना भी वक्त गुजारा है, वो चाहे वो पहला शूट आप लोगों के साथ ही हो, लेकिन अब तक जितनी दोस्ती क्लियर की है वो सबकी जर्नी, यू ऑल्सो नो दैट वेरी वेल माई जर्नी विद इट. सो आई थिंक वो जो उसकी अच्छी बातें हैं, चाहे उसके साथ खेलना, खाना, घूमना, ट्रैवल करना, वो बहुत सारी बातें जो मुझे याद, और उसकी जो एक बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि भैया फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी चीज़ है, लाइफ बहुत बड़ी है. क्योंकि जिससे वो फिल्म को हम हमारे लिए सारी जिंदगी फिल्म बन जाती है, और वो हमें उसके लिए बहुत सारे ड्रीम्स हैं. वो चाहे वो नासा का ड्रीम हो, चाहे वो स्टार्स का ड्रीम हो, चाहे वो मतलब उसके बहुत सारे ड्रीम थे. उसके लिए फिल्म हमेशा उसमें एक चीज मैंने उससे सीखी है बहुत क्लियरली कि ये लाइफ इससे भी ज्यादा बड़ी है. डोंट स्टिक टू फिल्म इंडस्ट्री. बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं जो शायद मैं कोशिश करूंगा पूरा करने की. पर सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि जो और हमेशा बच्चों को पुश करने में, सपोर्ट करने में बहुत हमेशा मोटिवेट करता था. मैं हमेशा ये कोशिश करूंगा कि मैं और जितना हो सके लोगों को पुश करूं और टैलेंट पे लाऊं और उनको भी आगे लेके जाऊं, जो मेरा हमेशा से सपना रहा है. लेकिन अब वो सपना जो है मेरी प्रायोरिटी बन गया है, टू गेट मोर पीपल एंड गेट मोर talent to this industry. Yeah, because so many people from television के लिए वो आइडल बन चुका था कि वो टेलीविजन में जाकर सुशांत को देखते थे कि सुशांत फिल्म में इतना बड़ा बना है. अभी मुझे और ऐसे एक्टर को लाना है जिसके और ऐसे जो हमेशा उस लेवल तक पहुंचे और उसको सबके उस टैलेंट को लेकर. राजकुमार मतलब उसके साथ काम जैसे बाकी ऑफकोर्स नवाज भाई, मनोज भाई, हम सब इन बारे में एक दफा से बात करते आ रहे हैं. कॉलेज के टाइम से उनको देखते आ रहे हैं. ग्रेट. राजकुमार उसका एक्टिंग आप देखोगे तो उसको भी मैंने इतने साल से देखा है. उसी पंकज त्रिपाठी जिसके काम में बहुत देखा. मैं मतलब आयुष्मान खुराना, मुझे जिस तरह से उसके जर्नी जैसे सब चीज़ों को समझता है, वो कर रहा है, वो बहुत. लुक एट कार्तिक, मेरे लिए बहुत हमेशा लगता था कि अब जो जैसा उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, और जिस तरह चीजों को उसने डील किया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद ऑल ऑफ देम. जैसे एक जेरी पलावत, रसिका दुग्गल, ये सब, रिचा चड्डा, दे सच ग्रेट एक्टर्स. आपकी फिल्म के I also honest, sorry to cut you, I also love कृति सेनन. उसको भी मैंने देखा, उसके जर्नी, वो कैसे कहाँ से कहाँ तक अपने आप को एज एन एक्टर उसने इम्प्रूव किया, कैसे अपनी चीज़ों को हैंडल किया, और कैसे उसने अपने आप को एज एन एक्टर इम्प्रूव किया. आई थिंक आई रियली ह्यूज एडमायर ऑफ कृति सेनन. आई थिंक मैं ये कहूँगा कि वो आपने उसको इतना प्यार दिया है, उसको जस्ट
लेट हिम रेस्ट इन पीस, जस्ट उसको और प्यार दीजिए, और उसका प्यार जो है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। ऐसा नहीं है कि हम अभी बरकरार है, क्योंकि वो हमेशा के लिए बरकरार रहे, जिंदगी के लिए प्यार बरकरार रहे। और जितने प्यार आपने उसकी फिल्म को दिया है, उस हर फिल्म को दीजिए जो जो फिल्म जो है वो डिजर्व करती है। हर उस एक्टर को दीजिए जो जेन्युइन रिस्पेक्ट और प्यार को डिजर्व करता है। तो ये मेरी दुआ है सबके साथ।